ضلع دادو کے علاقے تالکا کے رہائشی سیلاب کے بعد گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرین کی جمع پونجی اور مال مویشی سب پانی میں بہہ گیا۔ زمینی راستے بند ہونے سے شہری کشتیوں پر مہنگا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسنین اہلک سے، جو کوچ کرنے والی ایک ایسی ہی فیملی سے ہمیں ملوا رہے ہیں۔ حسنین، ملوائیے گا۔ دادو کے علاقے سیتا اسٹیشن کے مقام پر موجود ہیں، جہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہاں پر ایک بندرگاہ ٹائپ کا یہاں پر نظارے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں اور دور دراز کے جو علاقے ہیں چونکہ وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہ اس پانی میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کے جو ٹریول کرنے کی ایک واحد صورتحال ہے وہ کشتی ہے۔ کشتی کے ذریعے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہی مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سر، آپ کس علاقے سے آئے ہیں، کتنا سفر کر کے آئے ہیں، اور یہ پیچھے نظر آ رہا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے، کن مشکلات کا سامنا؟ مشکلات ہے کہ ہمارے سارے گاؤں ہے ڈوب گیا، تالکا سارا ڈوب گیا ہے۔ کچھ جو جگہ ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، چوپائے مال جو تھا وہ بہہ گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں۔ کچھ اتنا نقصان ہوا ہے، کوئی کسی نے مدد ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کی، نہ ایم پی نے نہ ایم این اے نے، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ بچے ہیں اب مر گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اپنی مدد آپ سے طرح سے 2 روپے کر کے کشتی کے ذریعے یہاں پر آتے ہیں، کتنے پیسے دے کے آتے ہیں؟ وہ بیچار کچھ رعایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں پہلے تو آپ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اب جو آپ کے پاس ہے دو، خدا کام کر رہے ہیں، کچھ 2 روپے ان کو دے رہے ہیں۔ واپس آپ نے یہاں پر کیا لینے آئے ہیں اور واپس پھر ادھر ہی جائیں گے؟ کچھ نہیں، پانی بچنے سے آئے، اپنا جان بچا کے بچے لے آئے ہیں، ادھر جھوپڑی میں بیٹھے گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔ جی، یہ تالکا کے رہنے والے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دادو اور گرد و نواح میں یہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کشتیوں کے ذریعے اپنی جان بچا کر یہاں پر ہیں اور یہاں پر اپنے گزر بسر کے لیے کہیں کوئی حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گوٹھ منگنواری بھی زیر آب آ گیا۔ کھجور کی فصل تباہ ہونے سے مکین بے روزگار ہو گئے۔ گاؤں میں ملیریا، ڈائریا اور جلدی امراض پھوٹنے لگے۔ مزید تفصیلات عثمان خادم کمبوت سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی، میں اس وقت خیرپور تحصیل کی گوٹھ منگنواری میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ کو جو پانی نظر آ رہا ہے یہ کوئی جھیل یا سمندر نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی دریا ہے، بلکہ یہ میدان ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی فصلیں تھی، کپاس کی فصل تھی جو مکمل طور پہ زیر آب آ چکی ہے، اور میرے عقب میں تھوڑا سا پیچھے دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک گاؤں تھا جس میں تمام کچے گھر اس وقت ڈوب چکے ہیں، پانی میں بہہ چکے ہیں۔ صرف ایک گھر ہے جو پکا وہاں پہ موجود تھا، وہ بھی اس وقت کئی فٹ تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ رستہ جس پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ بنایا گیا ہے اس گاؤں کو جانے کے لیے، لیکن یہ بھی آگے جا کے سارے کا سارا پانی کے اندر بہہ چکا ہے۔ رستہ ہی نہیں رہا لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے گھروں کے علاقے تک جا سکے، اپنی فصلوں میں جا سکے۔ علاقہ مکین بھی کچھ یہاں پہ موجود ہیں۔ سر، یہ کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ پانی کھڑے ہوئے اور کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ ایک مہینہ ہوگا ایک پانی کھڑے کو، ابھی یہ 4-5 مہینہ ادھر فصلیں نہیں ہوگی، پانی ہوگا ادھر تک، حیدرآباد تک یہی پانی ہے، یہاں دیکھ رہے ہو۔ تو آپ کو کیا کیا چیزوں کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ نہ فصلیں آپ کی بچی ہیں، نہ مال بچا ہے؟ گھر بچا ہے، نہ فصل بچے، ہم بس کھڑے رہے ہیں، بس ادھر بٹھا ہے، کیا کرے؟ ابھی گھر بھی تباہ ہو گئے، فصل سارے تباہ ہوئے۔ ہمارے کو کچھ کی ضرورت ہے، ہمارے کو مدد کرو، جو جتنی مدد چاہے تتنی کرو۔ جی بالکل، جو یہاں کے مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فصل بہہ گئی ہے، انہوں نے جو راشن جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، وہ بہہ گیا ہے، ان کے گھر بہہ گئے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے راشن کی، صاف پانی کی، اور اس کے بعد جب یہ پانی خشک ہوگا تو انہیں ضرورت ہوگی مدد کی اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو وہ التجا کر رہے ہیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی جانب جن کو سیلاب نے، بارش نے متاثر نہیں کیا، کہ وہ لوگ آگے بڑھے اور ان کی مدد کریں، ان کو راشن بھیجیں، ان کے لیے صاف پانی مہیا کریں اور پھر ان کے گھر ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 24 نیوز کی خبر پر ایکشن۔ میرپور خاص میں گزشتہ دنوں تیز ہواؤں سے سیلاب متاثرین کے خیمے اکھڑنے کی خبر چلنے کے بعد سماجی شخصیت کی جانب سے خیمہ بستی بسا دی گئی۔ 50 خیموں پر مشتمل اس عارضی بستی سے ذیشان شیخ تفصیلات بتائیں گے۔ جی ذیشان۔ 24 پر نشر ہونے والی خبر جس میں یہ سیلاب متاثرین کی جو ہے تیز ہوا کی وجہ سے خیمے اکھڑ گئے تھے، اس خبر کا نوٹس لیتے ہوئے مخیر حضرات نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں ایک جو ہے 50 سے زائد جو ہے خیموں کی جو ہے ٹینٹ سٹی قائم کی ہے، جہاں پر جو ہے ان کو راشن، خوراک اور صاف پانی دیا جا رہا ہے۔ جبکہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ایک سیلاب متاثرین، میں ان کی بات آپ سے کراتا ہوں کہ ان کو یہاں کیا جو ہے ان کو کیا ریلیف چاہیے؟ سائیں حضرات اساں کہتے سب کچھ ملے پیو، تھوڑا جا گھणو ملے پیو، پر یہ بھلایو انہن جو ان جے کے اساں کے ॾेई रहिया आहिनि
आखिर असां टप टाड़ी सब रुली विया आहिनि, जॻहियूं घर बार सब का शइ कोन रही आहे। असां पंहिंजो सुर बचाए बचा वठी हिते अची वेठा आहियूं। जी, इनका कहना था कि बारिश ने इनको सख्त बुरी तरह मुतासिर किया है। इनके घर बार जो है वो सब डूब चुके हैं, इनके सामान बर्तन वगैरह वो सब डूब चुके हैं। ये सिर्फ अपनी जान और अपने बच्चों की जान बचा के वहाँ से निकले हैं। इंतज़ामिया से उन्होंने ये अपील की है कि इनके लिए जो है इतना हो सके उतना रेस्क्यू किया जाए। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सऊदी अरब के सफ़ीर मिस्टर नवाब सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर वज़ीर आला सिंध के साथ ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध ने सऊदी सफ़ीर को सिंध में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफ भी किया है। अहम मुलाकात का अहवाल आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सऊदी अरब के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर ने सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर वज़ीर आला सिंध के साथ ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध ने सऊदी सफ़ीर को सिंध में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफ भी किया है। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध के साथ ताज़ियत भी की, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सऊदी सफ़ीर को सिंध में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से ब्रीफ किया है। कराची में मोटरवे M9 पर साबिका टोल प्लाजा के करीब तंबो गोट के नाम से 30,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की आबादी कायम की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे समर अब्बास से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी समर, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त तंबू गोट में मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन को ला के बिठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो मुख्तलिफ अज़ला में जो सैलाब मुतासर हुए हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हैदराबाद डिवीज़न है और जामशुरुक, ये जैसे ही M9 कराची से ख़त्म होगा उसके साथ ही जो है ये सीधे हाथ पे तंबू गोट बनाई गई है पुलिस की जानिब से। और इस वक्त हमारे साथ DIG हैदराबाद मौजूद हैं। ये बताइएगा, तंबू गोट यहाँ बनाने का क्या मकसद था? देखें, ये एक नेचुरल जगह थी। एक तो यहाँ की हवा बहुत मशहूर है, लोगों को पता है कि यहाँ पर पिछले 2010 में भी आके सेटल हुए थे। 30,000 से ऊपर पॉपुलेशन हो चुकी है, जो कि हम डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। तो राशन हम इनको सप्लाई करते हैं बाकायदा टोकन सिस्टम के ज़रिए। किचन हमने यहाँ पर 2 किचन्स हैं, एक बहरिया के ताउन से और एक सैलानी से। तकरीबन 10 से 15,000 लोगों को कुक्ड फूड डेली 2 वक्त का यहाँ पर मिलता है। इसके तो बाकी 15,000 लोग आपको मुश्किलात तो पेश आ रही होंगी, क्योंकि ये तो आप जो है सिंध गवर्नमेंट के ताउन से कर रहे हैं या सिर्फ ये पुलिस या जो NGOs हैं उनके ताउन से किया जा रहा है? देखें, ये बेसिकली कमिश्नर साहब और मेरा एक आइडिया था कि इसको हमने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। और इसमें NGOs मुख्तलिफ कराची के मुखैर हजरात हैं, बैंक्स हैं 1-2, वो आते हैं, वो ख़ुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो पुलिस लाइन चलते हैं, अपना स्टॉक करते हैं चीज़ें, अगले दिन वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं। इश्यूज़ हैं बिल्कुल, उनको हम फेस कर रहे हैं। मुखैर हजरात अगर कोई मदद करना चाहें सैलाब मुतासरीन की, वो क्या तरीका ख्याल इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मैं यही अपील करूँगा, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। ये कराची से दूर भी नहीं है, 1.5 घंटे की ड्राइव है। लोग आएँ, खुद आंखों से देखें। हमारी हेल्प डेस्क है 24/7 वो चलती रहती है। बहुत शुक्रिया। ये थे DIG पीर मोहम्मद शाह। इस वक्त कमिश्नर हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम मेमन साहब। ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एक ही साथ जो है वो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। हमें सपोर्ट और इमदाद की ज़रूरत है इस सेंस में कि लोग खुद आएँ, या अपनी आंखों से देखें और ख़ुद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अच्छा खासा जो है वो राशन बैग्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हर जगह पे। 65,000 के करीब जो है वो टेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड कर चुकी है। 20,000 के करीब जो है वो हम दे चुके हैं। इसके अलावा PTMA ने अच्छा खासा राशन जो है वो फराम किया है डिफरेंट इलाकों के अंदर। जैसे जैसे चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आती जाएंगी वो भी जाएंगी, लेकिन अकेली गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े लोगों को जो है वो कैटर नहीं कर सकती। इसलिए अपील लोगों से यही है कि लोग आएँ, देखें और अपने भाइयों की इस मुसीबत की घड़ी में मदद फरमाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे कमिश्नर हैदराबाद। इनका यही कहना है और DIG हैदराबाद का कि हमारा काम था, हमने यहाँ तंबू जो है गोट बना दिया। यहाँ पे सैलाब मुतासरीन आ रहे हैं, जो मुखैर हजरात हैं वो खुद आकर देखें और इन सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहे तो पुलिस से रब्ता करें, हमसे रब्ता करें, ताकि हम एक सिस्टम के तहत जो इन्हें राशन तकसीम कर सकें, इन्हें टेंट फराम कर सकें। जब दीगर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैकब आबाद पाक आर्मी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे 130 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
जैकब आबाद के नवाही इलाके खैरवाह में सैलाबी पानी के बाइस महसूर अफराद को बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए जाने वाले मुतासरीन में खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। जैकबाबाद पाक आर्मी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे 130 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लिया में सैलाब ज़दगान की जिंदगी ताहाल मुश्किलात का शिकार है। सुमरा नशेब में सैलाब ने तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। लिया के मोहम्मद हबीब की फसल और घर सैलाबी पानी में बह गए। मोहम्मद हबीब किन मुश्किलात का शिकार हैं, बता रहे हैं लिया से अपने नुमाइंदे जाहिद। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ सुमरा नशेब के अंदर। सुमरा नशेब के अंदर अमसाल जो दरिया सिंध के हवाले से अगर बात करें तो सैलाबी पानी ने बड़े पैमाने पर नुकसानात किए, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इस वक्त भी शदीद परेशानी और कसम पुरसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं सब मौजूद हूँ सुमरा नशेब के घर के अंदर, जहाँ पर अगर बात करें तो घर की जो कमरे हैं वो गिर चुके हैं, जबकि जो चार दीवारी है वो भी ज़मीन बोस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो मकीन है यहाँ पर आज खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर पानी की जो सूरत हाल की बात जो पानी है वो ज़ेर ज़मीन वो भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे, मर्द और ख़वातीन तमाम जो लोग हैं बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। सर्दियों की आमद है, लेकिन ताहाल जो है हुकूमत जानब से इक़दामात नहीं किए गए। कुछ लोगों से बात करते हैं। बच्चा जो दसे सो क्या नुकसानात हैं? मकान लूट है कि हवेली ढह गई है, देखो घाय वो ख़त्म थी गए, बहुत खड़े हैं वो मजबूर हैं। तो अच्छा, कुछ सर्वे वास्ते तो कैसे कह नहीं आए, सर्वे में कह नहीं आए, कोई तो कोई इमदाद देती नहीं, इमदाद थोड़ी बाड़ी दी थी, कोई फौजी आनी थी, कोई एक बंदा भी डाले थे वो आनी थी, बाकी कैसे नहीं आनी थी। अच्छा, मकान जो कौन है की में मतलब बस मैं अल्लाह वारे सुन क्या करूँगा, सारे को इतनी बड़ी कहानी दरिया सब बढ़वाऊँ, बहुत खड़े हैं मैं खुदा दे आस होते हैं। जी बिल्कुल जी, ये जो सैलाब मुतासरीन है तो दोहरी परेशानी का शिकार हैं कि जानवर लंबी स्किन की वजह से बीमार हैं, उसके साथ साथ घर वाले और अहल खाना जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है उनकी इमदाद को यकीनी बनाए, सिर्फ बातों या दावों तक बल्कि अमली तौर पर उनकी इमदाद के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि। बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब का पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। बस्ती जादियानी कोट चट्ठा में सैलाब ने घरों के निशानात मिटा दिए। वापस आने वाले मुतासरीन अपने घर ढूंढ रहे हैं। मजीद बात करते हैं राना मोहम्मद सलीम से। सलीम, बताइएगा। तहसील कोट चट्ठा के सैलाबज़दा इलाके बस्ती जादियानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक माह से मुसलसल जो है कई फीट पानी यहाँ पर खड़ा रहा। अब जो है इन बस्तियों का जो है रास्ता बहाल हुआ है और यहाँ के मुतासरीन सैलाब जो हैं वो इस वक्त अपने घरों को वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। जी बुजुर्गों, दसो क्या सूरत हाल है? घर दो वाले वे सर घर रह कर नहीं गए, वरिया ने हर से कसे कहीं खमार सही लौट गया न, कुकड़ी लौट गया, सारे माल लौट गए, खबर कितना गए मोह जींदे कोई पता कर नहीं सको। असा इतना वरिया ने कसे गए सारे टिबे न, सारे घर के निशान ही कहीं नहीं करते। असा आप आते भीड़ दो सर, वो आदमी इतना मेरा घर है, वो आदमी इतना मेरा घर है, सारे घर कहीं नहीं रह गए। हूँ कुछ पानी सुखे तो असा महीने बाद हूँ आयूँ, हूँ आप आते भीड़ दो। जी बिल्कुल, कुदरत की सितम ज़रीफ़ी के सैलाब ने जो है इन लोगों के सरों से जो है छत छीन ली है। बेसरो सामानी के आलम में लोग जो हैं इस वक्त हुकूमती इमदाद। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन से अगस्त सितंबर के बिजली बिल न लेने का ऐलान। कहते हैं 300 बिजली यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। सैलाब की तबाहकारियों से हर आंख अश्कबार है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। इन इलाकों में जहाँ पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ़ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। माफ़ लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। वो उनकी जो रकम का तकाज़ा उनसे वापडा नहीं करेगा। उनको वो उन बिलों को ख़त्म कर दिया गया, डिमांड नहीं किए जाएंगे। 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनसे हमने 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया और 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को हमने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो 300 यूनिट के ज़मरे में आते हैं ब्रैकेट में,
और वो कोई 75% वो कंज्यूमर्स हैं, उनको हमने ये इस 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया। और अब हम माह सितंबर में, इस महीने में इंशाअल्लाह उनसे डॉलर मुसलसल महंगा होने से ताजिर हों या सनतकार सब शदीद परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि डॉलर की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव पर हर सेक्टर का काम रुक गया। मजीद तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, मईशत की बात करें तो मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉलर है कि वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, साथ में देखें पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। साथ ही सिर्फ एक माह के लिए जो बिजली की कीमत है 4 रुपये 12 पैसे कमी हुई, इसके असरात क्या होंगे हम जानते हैं। यहाँ पे जो जावेद बिलवानी हमारे साथ बिजनेसमैन ग्रुप के जो नायब चेयरमैन हैं मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है ना, इस पर बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग परेशान हैं। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर सब परेशान हैं। एक्सपोर्टर जो हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं कि हम अपनी पेमेंट रुकवा दें, क्या करें। और ट्रेडर्स और बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको पता नहीं है वो आगे माल बेचेंगे। एक्सपोर्टर भी माल बेचते हुए परेशान हैं कि इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। कि माल कोई मंगाते हैं तो जब उसका माल घर में आता है तो वो जो कॉस्टिंग की हुई होती है वो कॉस्टिंग इनकी आउट हो जाती है, तो न माल ख़रीद सक रहे हैं ना माल बेच सक रहे हैं। इस तरह अपनी पेमेंट मंगाते हुए भी परेशान हैं। मतलब हर जगह का साइकिल जो है ना, साइकिल रुक गई, पहिया रुक गया है। ऐसा हो गया कि ट्रेडर काम नहीं कर पा रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट अपनी प्रोसीड्स और रेमिडेंस आने पे परेशान है कि यार ये कभी कम होता है और पेमेंट आ जाती है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये हर तरफ से मामलात ख़राब हैं। अच्छा जावेद साहब, अगर हम देखें जो बिजली की कीमत मुसलसल जो बढ़ी है, ये जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद सब्सिडी कम होने के सिर्फ 4 रुपये 12 पैसे एक महीने के लिए कम, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखें, ये तो कई दिन से हम लोग कह रहे थे कि जब पेट्रोल के दाम इतने गिरे हैं और पेट्रोल के दाम तकरीबन जो है 15 या 17% नीचे आ गए हैं, तो सब कहते थे कि बिजली के दाम क्यों नहीं गिर रहे। अब गवर्नमेंट हमें, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरे रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी गैस, हम कैसे काम करेंगे। एक्सपोर्टर बेइंतहा परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट बेइंतहा परेशान है, नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही, मशीनरी के अंदर एलसी नहीं खोलने दे रहे एक्सपोर्टर्स को, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और इसको अगर फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेस पे अगर चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बुरे नतीजे इस मुल्क में आएंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ जो कंसर्न है कि जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, सनतकार शदीद परेशान है, रुपए की कदर तेज़ी से उतार चढ़ा हो रहा है और उसका भी मनफी असरात होंगे। साथ ही हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी बैठ कर स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करें और इस मसले का हल करें। बहुत शुक्रिया आपका। पैनाडोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ड्रैप ने बड़ी कार्रवाई की है। कच्ची गली मेडिसन मार्केट में अल्ताफ़ ट्रेडर पर छापा मारकर 2,52,000 ज़ख़ीरा की गई पैनाडोल की गोलियां बरामद कर लीं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मार्केट में पैनाडोल की किल्लत पैदा की गई। तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत, इस कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बड़ी तादाद में मेडिसिन जो है वो मार्केट में शॉर्ट थी। इसके बाद जो है वो ड्रैप ने कार्रवाई की है। ड्रैप ने कल इस्लामाबाद में भी कार्रवाई की थी और अब जो है वो कराची में कार्रवाई की है, जहाँ पर जो है वो पैनाडोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई बताई जा रही है। और वज़ीर सेहत का कहा है कि खेल की जो है वो क्रैकडाउन जारी है। और ड्रैप की टीम ने जब कराची में जो छापा मारा है, उस दौरान जो है वो छापे के दौरान तकरीबन 2,52,000 पैनाडोल की जो टैबलेट्स हैं वो पकड़ी गई हैं। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से मार्केट में से यही दवाई जो है वो मसनूई किल्लत पैदा हो गई जिसकी। और इसके बाद जो है वो वज़ारत सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि फार्मेसी से बहुत गैर वारंटी शुदा स्टॉक भी जो है वो बरामद हुआ है जो कि मशकूक हो सकता है। शाम जो है वो ड्रैप की टीम ने स्टॉक को कब्जे में ले लिया है और इस ज़मीन में जो है वो टेस्ट के लिए नमूने भी जो है वो लिए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है वज़ारत सेहत को, वज़ीर सेहत को भी जो है वो रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अफगानिस्तान की सरहद से दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत, बोले बुज़दिल दुश्मनों ने छुप कर हमारे बहादुर जवानों पर हमला किया। आसिफ अली जरदारी का नायक मोहम्मद रहमान, नायक मुआवीज़ खान और सिपाही इरफानुल्लाह की शहादत पर अफसोस का इजहार।
आसिफ अली जरदारी की शुहदा के ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफ़गान सरहद से दहशत गर्दों की फायरिंग की मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अफ़गान हुकूमत दहशत गर्दों को कार्रवाइयों से रोके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाक फ़ौज के जवानों की शहादत पर उनके बुरसा से इजहार अफसोस किया है। नाइक मोहम्मद रहमान, मुआविज़ खान और सिपाही इरफानुल्लाह की शहादत फरामोश नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सरहद पार दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाक फ़ौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। मेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात तलबा पर भारी पड़ गए। गोमल यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर का वाइस चांसलर को हिरासत करने पर तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साजिद, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोमा यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर, और गोमा यूनिवर्सिटी जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कल से जो है अली अमीन गंडापुर की धमकियों की वजह से बंद हो चुकी है। इस वक्त गोमा यूनिवर्सिटी के मैं बिल्कुल हाल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर्स, डीएन्स और जो गोमा यूनिवर्सिटी के जितने मुलाजमीन हैं वो इस हाल में मौजूद हैं, और इस वक्त वो खिताब भी कर रहे हैं। और गोमा यूनिवर्सिटी के अंदर जो सियासी मुदाखलत की जा रही है उसके ख़िलाफ़ उनका जो है अभी उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया है, वॉक भी की है। शरका का कहना है कि गोमा यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ात हैं वो जो है ज़री यूनिवर्सिटी को जो है वो मुंतकिल ना किए जाए, क्योंकि ये खिलाफ कानून है। और अली अमीन की जो गोमा यूनिवर्सिटी के अंदर सियासी मुदाखलत है और जो वीसी को उन्होंने धमकियाँ दी हैं, ये नाकाबिल कबूल है। इस वक्त मैं आपको तमाम सूरत हाल से बताता चलूँ कि गोमा यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के हवाले से सूबाई कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया है कि गोमा यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ात हैं वो ज़री यूनिवर्सिटी को जो है मुंतकिल कर दिए जाएँ। तो गोमा यूनिवर्सिटी के जो एसेट्स हैं वो तकसीम नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये खिलाफ कानून है। गोमा यूनिवर्सिटी एक्ट और 2 अक्टूबर 2021 को पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, तो उस फैसले की रोशनी में भी ये जो गोमा यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ात हैं ज़री यूनिवर्सिटी को जो है तकसीम नहीं किए जा सकते। तो इस तमाम सूरत हाल पर जो है वाइस चांसलर जो है गोमा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने स्टैंड लिया है और वो खड़े हो गए हैं। लेकिन अब जहाँ पर गोमा यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल है इस हवाले से अब इनके जो प्रोफेसर हजरात हैं, डीएन्स हजरात हैं और जो मुलाजमीन हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उनकी तरफ से जो है एहतजाज भी जारी है, उनकी तरफ से वॉक भी जारी है, उनकी तरफ से हड़ताल भी जारी है। और गोमा यूनिवर्सिटी के ये कहते हैं कि एसेट्स को जो है किसी सूरत जो है तकसीम ना किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को मैसेजेस करके 2 मरतबा उनसे इस्तीफ़ा मांगा है। तो वाइस चांसलर गोमा यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है और इस तमाम सूरत हाल से उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जो है ख़त लिख कर आगाह किया है। इसके बाद DPO डेरा इस्माइल खान नजमुल हुसैन लियाकत को भी इन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई और मुकदमे के अंदराज के लिए कि उसने मुझे धमकियाँ दी हैं और मेरे ऑफिशियली जो ड्यूटी थी उसमें मुदाखलत की है, कार सरकार में मुदाखलत की है, तो इस हवाले से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। डेरा इस्माइल खान पुलिस की तरफ से ताहल अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुकदमे का अंदराज नहीं हो सका है। वाइस चांसलर गोमा यूनिवर्सिटी को जो कायम मकाम गवर्नर हैं मुश्ताक गनी जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं उन्होंने ख़त लिखा है। उस ख़त के जवाब में उन्होंने कहा है कि आप ज़री यूनिवर्सिटी को जो है गोमा यूनिवर्सिटी के एसेट जो है फौरी तौर पर मुंतकिल करें, लेकिन VC जो है वो मुंतकिल नहीं कर रहा है क्योंकि ये खिलाफ कानून है। तो वाइस चांसलर भी आज कल में 2 दिन के अंदर अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से जो है जवाब देगा। अली अमीन गंडापुर ने ये ऐलान किया है कि मैं वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद के ख़िलाफ़ ऐलान जंग को मैं हर सूरत हटा कर दिखाऊंगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि PTMA की जानिब से पंजाब से आटा ख़रीदा गया था, लेकिन वो ट्रक जब पंजाब से सिंध को रवाना किए गए तो वहाँ पर रोक लिए गए उन ट्रकों को और FIR का इंदराज किया गया है। PTI तमाम हदें क्रॉस कर रही है। शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम हुदूद पार कर रही है।
उनका कहना था कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बॉर्डर आटे के ट्रक रोक लिए। PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीद लिया है। सिंध आने वाले ट्रकों को न सिर्फ रोका गया बल्कि आटा भी जब्त कर लिया गया है। PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीद लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम हदूद पार कर रही है, ऐसा कहना है शर्जील इनाम मेमन का। पंजाब में PTI हुकूमत ने बॉर्डर पर आटे के ट्रक रोक लिए।